اس اجلاس کے معزز صدر، مرکزی جماعت اہل حدیث کے امیر محترم، اسٹیج کی زینت بنے علماء کرام اور 35ویں آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس کے سامعین باتمکین، میرا عنوان ابھی آپ نے سنا۔ مجھے جس موضوع پر روشنی ڈالنی ہے وہ موضوع ہے دہشت گردی کے خاتمے میں اسلام کا کردار۔ 20ویں صدی کے اختتام اور 21ویں صدی کے آغاز میں پہلی مرتبہ دنیا انسانیت دہشت گردی کی اصطلاح سے متعارف ہوئی، جب رہ کر وقفے سے دنیا میں قتل و غارت گری اور خون ریزی کے ایسے واقعات پیش آنے لگے جنہیں اسلام کے نام سے منسوب کیا جانے لگا۔ کبھی تو حادثہ برپا کرنے والا ہی اس حادثے کو اسلام کے نام منسوب کرتا تھا، اور کبھی میڈیا ایسے واقعات کو اسلام سے منسوب کرنے لگا۔ نتیجے میں تاریخ کے جھوٹ کا پردہ فاش کرنے کے لیے علماء اسلام نے کمر کس لی۔ کیا دل نے رسوا تو پھر کس کا شکوا، کیا دل نے رسوا تو پھر کس کا شکوا، قیامت ہے اٹھی یہ اپنے ہی گھر سے۔ حضرات گرامی، دہشت گرد کون ہے؟ دہشت گردی کیا ہے؟ دہشت گردی یہ درندگی ہے، یہ حیوانیت ہے، یہ سفاکیت ہے، یہ لاقانونیت ہے۔ دہشت گردی یہ غداری ہے، یہ کجروی ہے، یہ کج فہمی ہے، یہ جوش بلا ہوش ہے، یہ ظلم و زیادتی ہے، یہ طغیان و عدوان ہے۔ حضرات، دہشت گردی درندگی کا ایک ایسا مظہر ہے جہاں انسانیت ہر قدم دم توڑتی ہے، جہاں انسانی قدریں ہر قدم پامال ہوتی ہیں، جہاں جذبات کا خون ہوتا ہے، جہاں رشتے ناطے بھی رحم و کرم کی دہائی دیتے ہیں۔ دہشت گرد کا کوئی مذہب نہیں ہوا کرتا، دہشت گرد کا بس ایک ہی تعارف ہے کہ وہ انسانیت کا دشمن ہوتا ہے اور اسے انسانی اقدار سے بیر ہوتا ہے۔ حضرات، گزشتہ 25-30 سالوں میں دہشت گردی کے نام پر دہشت گرد تنظیموں نے جو خون کی ہولی کھیلی ہے اور فساد کا جو بازار گرم کیا ہے، اس کے تصور سے ہی روح کانپ اٹھتی ہے۔ نہ ننھے معصوم بچوں پہ ترس کھایا گیا، نہ مجبور بڑھاپے پہ انہیں رحم آیا، اور نہ ہی ماں باپ کے رشتے کی عظمت کا پاس و لحاظ رہا۔ آپ میں سے اکثر اس بھیانک حادثے کا علم رکھتے ہوں گے۔ سعودی عرب کے شہر ریاض میں مئی کا مہینہ تھا، 2016 کی بات ہے۔ مئی کے مہینے میں دو ایسے سگے بھائی جو داعش کے نظریات سے متاثر تھے، داعشی فکر کے حامل تھے، اور عمر ان کی 19-20 سال سے زیادہ کی نہ تھی۔ ان دونوں بھائیوں نے مل کر آپس میں سازش کر کے اپنی ماں کو ذبح کیا، اپنی والدہ کو ذبح کیا، اپنی والدہ کا خون کیا۔ اسلام کے نام پر، جہاد کے نام پر والدہ کو ذبح کرنے کے بعد باپ پہ حملہ اور ہوئے، باپ زخمی ہوا پر بچ گیا۔ چھوٹے بھائی پہ حملہ اور ہوئے، زخمی ہوا پر بچ گیا۔ یہ دہشت گردی کا وہ بھیانک چہرہ ہے جسے دیکھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا نوجوان انٹرنیٹ پہ بیٹھتا ہے، سوشل میڈیا پہ بیٹھتا ہے، ایسے ویسوں کی تحریریں پڑھ کے بسا اوقات ان کے شبہات کو دلیل سمجھ کر دہشت گردانہ نظریات سے متاثر ہو جاتا ہے۔ اسلام کہتا ہے والدین اگر غیر مسلم بھی ہو، والدین اگر کافر بھی ہو، اسلام کہتا ہے وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، کہ تمہارے ماں باپ غیر مسلم صحیح، وہ تمہارے حسن سلوک کا حق رکھتے ہیں۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے، اور اسی اسلام کے نام پر اور اسی اسلام کا نام لے کر دہشت گردی کے نظریات رکھنے والے اپنے ماں باپ کو ذبح کرتے ہیں۔ دنیا میں جب سے دہشت گردی کا یہ فتنہ شروع ہوا، اسلام ہر محاذ پر دہشت گردی سے لڑ رہا ہے، اور پورا عالم اسلام اس لڑائی میں شریک ہے۔ کیا حکمران طبقہ، کیا علماء، کیا مفکرین، کیا دانشوران، کیا دارالافتاء، سینکڑوں سیمینار منعقد کیے گئے،
सैकड़ों कॉन्फ्रेंसें मुनाकिद की गई, सैकड़ों मकाले लिखे गए, हजारों किताबें लिखी गई, जो इस्लाम ने तशद्दुद इंतहा पसंदी की जो मज़म्मत की, वसतियत और एतदाल की जो तालीम दी, और इस उम्मत का मीज़ा और खुसूसियत करार दी गई, वकज़ालिक जअलनाकुम उम्मतन वसता लितकूनु शुहदाअ अलन्नास वयकून अर्रसूलु अलैकुम शहीदा। ये वो उम्मत है जिसके अंदर न इफरात है, न तफरीत है, न गुलू है, न तसाहुल है। ये उम्मत वसत है। इन कॉन्फ्रेंसों में ये पैगाम दिया गया और दुनिया को बताया गया कि इस्लाम दीन रहमत है, इसकी किताब रहमत है, इसके नबी रहमत है, और जिस रब ने इस किताब को नाजिल किया वो रब रहमान और रहीम है। और इस्लाम मोहब्बत और शफकत का वो बहरे बकरा है। नफरत की जगह मोहब्बत ने ले लिया, नफरत के अलंबरदार लोग मोहब्बत के पैगंबर बन गए। कुरान ने कहा वज़कुरू इज़ कुंतुम अअदाअ फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना व कुंतुम अला शफ़ा हुफ़रतिन मिनन नार फ़अनक़ज़कुम मिन्हा वअल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम लौ अनफ़क़्त मा फ़िल अर्ज़ि जमीअन मा अल्लफ़्त बैन क़ुलूबिहिम। मज़हब इस्लाम ने आकर उस जजीरे अरब को जो जंग व जदल और फितना और फसाद की दहकती आग में जल रहा था, उस जजीरे अरब को अमन व अमान का गहवारा बना दिया। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बदलाने वाला, मुरादें गरीबों की बदलाने वाला, मफासिद को ज़ेरो ज़बर करने वाला, कबाइल को शीरो शकर करने वाला, उतर कर हीरा से सुए कौम आया और एक नुस्खे कीमिया साथ लाया। अरब जिस पे करनों से था जहल छाया, पलट दी एक आन में उसकी खाया, पलट दी एक आन में उसकी काया, रहा डर न बेड़े को मौजे बला का, इधर से उधर फिर गया रुख हवा का। इस्लाम के अंदर ये ताकत है, वो फितनों की हवाओं को नहीं, फितनों की आंधियों को मोड़ सकता है, फितनों की आंधियों को खत्म कर सकता है, फितनों की आग को बुझा सकता है, इसलिए कि किताब और सुन्नत में वो तालीमात मौजूद है। आपने एक हदीस का हवाला बार बार मुकर्रिरीन से सुना, बार बार उस हदीस का हवाला आ रहा था। यहूदी का जनाजा गुजरा, प्यारे नबी उठ खड़े हुए, सहाबा ने कहा ये तो यहूदी का जनाजा है। आपने कहा अलैसत नफ्सा, ठीक है कि यहूदी का जनाजा है, लेकिन बताओ इंसानी जान है कि नहीं? अहले इल्म कहते हैं जनाजा गुजरने पर उठ खड़े होने का मसला तो अब मनसूख हो गया, लेकिन अलैसत नफ्सा में जो सबक लिसान नबूवत ने देना चाहा कि इंसानी जान का एहतराम, इंसानी जान की कीमत और मौत चाहे वो किसी की भी वो बड़ा सबक रखती है। अलैसत नफ्सा का ये पैगाम क़ियामत की सुबह तक के लिए मुहकम में मनसूख नहीं है। हजरात, लिसान नबूवत ने, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वदा के मौके पर मैदान अरफात में खड़े होकर अपनी उम्मत को वसीयत के लहजे में ये जो अल्फाज इरशाद फरमाए थे, अला इन्न दिमाअकुम व अमवालकुम व अराज़कुम हरामुन अलैकुम कहुर्मति यौमिकुम हाज़ा फी बलदिकुम हाज़ा फी शहरिकुम हाज़ा। तुम्हारी जानें मोहतरम है, तुम्हारे माल मोहतरम है, तुम्हारी आबरू मोहतरम है। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सिर्फ मुस्लिम जानों, मुसलमानों के माल और मुसलमानों की आबरू की हिफाजत की तालीम नहीं देती। इस हदीस के अंदर हर इंसान की जान, हर इंसान का माल और हर इंसान की इज्जत और आबरू के मोहतरम होने का पैगाम भी मुज़मर है। बुखारी शरीफ की हदीस है, साहबी रसूल मुगीरा बिन शोबा रजी अल्लाह अन्हु आपकी खिदमत में आए, इस्लाम कबूल करने के लिए आए। और कैसे आए? 2-3 गैर मुस्लिम उनके साथ, उनको खत्म किया, 2 गैर मुस्लिमों को कत्ल किया। उनके पास जो माल मिला, माल लेकर प्यारे नबी की खिदमत में हाजिर हुए और कहने लगे, अल्लाह के नबी, इस्लाम कबूल करना चाहता हूं, ये लीजिए ये माल, वो जो 2 काफिर मेरे साथ चल रहे थे उन्हें कत्ल करके मैंने ये माल हासिल किया है, मेरा इस्लाम भी कबूल कीजिए और इस माल गनीमत को भी कबूल कीजिए। आपने कहा अम्मल इस्लाम फ़क़द क़बिलना व अम्मल माल फ़मालु ग़द्रिन व ख़ियाना। आपने कहा कि मुगीरा, जहां तक तुम्हारा इस्लाम लाना है सब मरहबा मंजूर है, रहा ये माल गदर, धोखे और खियानत से हासिल किया गया माल है, इस माल की हमें जरूरत नहीं।
प्यारे नबी ने यहाँ ये पैगाम खुले अल्फाज में दिया कि माल वो गैर मुस्लिम का सही मोहतरम है, इसी तरह से भाइयों इज्जत व आबरू भी उसकी मोहतरम और जान भी उसकी उसी कदर मोहतरम। हजरात, इस्लाम के किले में आओ, इस्लाम के किले में आओ। यहाँ आपको चारहा जानिब से अमन के नगमे सुनने को मिलेंगे, अमन के तराने सुनने को मिलेंगे, अमन का पयाम सुनने को मिलेगा। इस्लाम का हर सच्चा अलंबरदार वो अमन का पैगंबर होता है। अल्लाह अकबर। ये वो मजहब है जो कहता है कि जहां भी इंसानी समाज हो, इंसानी मुआशरा हो, रोजी रोटी से अहम मसला अमन का है। इंसानी समाज की अव्वलीन जरूरत रोजी रोटी नहीं, इंसानी समाज की अव्वलीन जरूरत अमन, कि हर इंसान उसकी जान महफूज रहे, आबरू महफूज रहे, माल महफूज रहे। जब खलीलुल्लाह ने दुआ की थी, अल्लाह से कहा रब्बि जअल हाज़ा बलदन आमिना वर्ज़ुक़ अहलहु मिनस समारात, पहले अमन के लिए दुआ की, बाद में रोजी रोटी के लिए दुआ की, अल्लाह इस शहर को अमन वाला शहर बना दे, और फिर कहा यहाँ के बाशिंदों को फलों की रोजी अता फरमा। पता चला कि अमन खाने पीने से ज्यादा इंसानों की बुनियादी जरूरत है, और ये वो मजहब है जिसका किबला, उसके किबले की पहचान ही अमन से है। वमन दखलहु कान आमिना, और ये वो मजहब है जिसका चांद भी तुलू होता है तो हर महीने का तुलू होने वाला चांद अमन का ऐलान करके तुलू होता है। जब हम हिलाल को देख के कहते हैं अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना, अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल अम्न वल ईमान वस्सलामति वल इस्लाम। मुसलमान की पहचान ही क्या बताई गई? मुसलमान की पहचान ये बताई गई सलामती। अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। मोमिन का तारुफ क्या कराया गया? अल मुमिनु मन अमिनहु अन्नास अला दिमाइहिम व अमवालिहिम। मोमिन वो है, मोमिन का इंट्रोडक्शन ये है, उसकी जानिब से किसी की जान, माल और इज्जत आबरू पे कभी कोई खतरा मंडराया नहीं करता है। हजरात गिरामी, एक बात मैं ये भी कहना चाहूंगा, जब दहशतगर्दी के मौजू पे हम गुफ्तगू कर रहे हैं, एक और पहलू पे बहुत तवज्जो देना जरूरी है। दुनिया से दहशतगर्दी का खात्मा करने के लिए फितनाए तकफीर का मुकाबला बहुत जरूरी है। एक दूसरे को काफिर कहना, एक दूसरे पे कुफ्र के फतवा लगाना, फितनाए तकफीर और इरहाब और दहशतगर्दी में चोली दामन का साथ। तकफीर दहशतगर्दी की पहली सीढ़ी है, तकफीर इरहाब का पहला जीना। दहशतगर्द पहले दूसरों को काफिर कहता है, काफिर समझता है, और फिर उन्हें मस्जिदों में जाके खत्म करता है, उड़ाता है। इसलिए बहुत जरूरी है इल्मी बुनियादों पर कौम को समझाया जाए, और खुसूसन हमारा नौजवान तबका जो जज्बाती होता है उन्हें समझाया जाए कि तकफीर कितना बड़ा खतरा है और तकफीर कितना बड़ा फितना है, और सलफ सालिहीन रहमतुल्लाहि अलैहि मजमईन ने तकफीर के सिलसिले में किस एहतियात से काम लिया। और दूसरी बात हमारे लिए और आपके लिए अजहद जरूरी है दहशतगर्दी के इस फितने का मुकाबला करने के लिए कि हम अपनी कौम को भी समझाएं मखलूत मुआशरे में जीने के क्या आदाब इस्लाम ने सिखाए। अभी मुस्तकिल तकरीर आपने सुनी, मखलूत मुआशरे में जीने का सलीका क्या इस्लाम ने बताया। जब हम एक मुल्क में दूसरे मज़ाहिब वालों के साथ रहते बसते जीते हैं, दूसरों के मजहबी जज्बात का कितना लिहाज रखना। कुरान ने कहा वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह फयसुब्बुल्लाह अदवन बिगैरि इल्म। ये वो मजहब है जो मखलूत मुआशरे के सिलसिले में ऐसी आला अखलाकी तालीमात देता है कि सहाबी रसूल अब्दुल्लाह बिन अम्र इब्न अस रजी अल्लाह अन्हु के घर बकरी ज़बह हुई, अपने यहूदी पड़ोसी की फिक्र करते हुए घर वालों से कहते हैं अहदैतुम लिजारी अल यहूदी, अहदैतुम लिजारी अल यहूदी, ये जो बकरी हमने ज़बह की है इसका गोश्त हमारे यहूदी पड़ोसी को हदिया में भेजा है कि नहीं। इन अखलाकी पहलुओं को उजागर करके पूरी कौम को यह समझाने की जरूरत है कि मजहब इस्लाम ने मखलूत मुआशरे में जीने के क्या तौर तरीके हमें बताए हैं और क्या तौर तरीके हमें सिखाए हैं। किस्सा मुख्तसर ये कि मोहतरम भाइयों, हमने इस मुल्क हिंदुस्तान को माजी में बहुत कुछ दिया, माजी में हमने इसको बहुत बनाया। हमें अफसोस होता है जब किसी तकरीबी कार्रवाई में कभी किसी मुस्लिम नौजवान का नाम आता है, हमें बड़ा दिल दुखता है
जब कभी फितना और फसाद के किसी भी मामले में किसी मुस्लिम नौजवान का नाम आता है, हमने यहाँ हमेशा से तामीरी रोल अदा किया है। आज भी इस मुल्क को तुम्हारे जज्बे तामीर की जरूरत है। आज भी इस मुल्क को मुसलमानों तुम्हारे जज्बे तामीर की जरूरत है। इस मुल्क में देने वाले बनकर जियो, इस मुल्क को अपनी काबिलियतें दो, इस मुल्क की खिदमत करो अपनी काबिलियतों के जरिए से, अपनी सलाहियतों के जरिए से। तुम्हारे जज्बे तामीर का मुंतजिर है ये मुल्क। इकबाल ने कहा, मेमारे हरम बाज बतामीर जहां खीज, मेमारे हरम बाज बतामीर जहां खीज, अज ख्वाबे गिरां ख्वाबे गिरां ख्वाबे गिरां खीज। कभी तुमने हरम तामीर किया था, तुम्हारे जद्द अमजद की पहचान ये है कि वो मेमारे हरम थे। तुम उसी खलीलुल्लाह की औलाद हो जो मेमारे हरम थे। तो तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम तहजीबों के मेमार हो, तुम सकाफतों के मेमार हो, तुम अमन के मेमार हो। तुम्हारी जानिब से कभी कोई तखरीबी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। हम रामलीला के इस स्टेज से जमी अहले हदीसाने हिंद की नुमाइंदगी करते हुए, बल्कि जमी मुसलमानाने हिंद की नुमाइंदगी करते हुए ये पैगाम देना चाहते हैं, दहशतगर्दी और दहशतगर्द उससे कभी हमदर्दी नहीं, कहीं हमदर्दी नहीं। बल्कि जब भी दहशतगर्दी से लड़ने की बात आए, इंशाअल्लाह हम सफ़े अव्वल के सिपाही होंगे। हम इस मुल्क को देने वाले हैं, हम इस मुल्क को देंगे। और इस्लामी अखलाक जबान से नहीं, इस्लामी अखलाक से बताने की जरूरत है, अपने अमल से बताने की जरूरत है कि इस्लाम दीन रहमत है, कुरान किताब रहमत है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी रहमत है। और इस कौम को, यहाँ रहने वाली गैर मुस्लिम अवाम को, यहाँ की सियासत को ये बताने की जरूरत है कि पत्थर मुझे कहता है मेरा चाहने वाला, पत्थर मुझे कहता है मेरा चाहने वाला, मैं मोम हूं उसने मुझे छूकर नहीं देखा। रब्बुल इज्जत से दुआ है कि परवरदिगार आलम मुझ कहने वाले को, आप सभी सुनने वालों को इस मुल्क में हमेशा से तामीरी रोल अदा करने की तौफीक अता फरमाए, मेमार बन के जीने की तौफीक अता फरमाए, किसी भी तकरीब कारी से अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन व सल्लल्लाहु वसल्लम अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व सहबिही अजमाइन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।